Welcome students, in this video we are going to learn chapter 5 arithmetic progression of class 10. What are the objectives of arithmetic progression? First, identify the given sequence is an AP or not. Second, how to find out its nth term. Next, sum of first n terms. Fourth, problems based on nth term and sum of first n terms. Now, what is a sequence? It is a list of numbers having specific relation between the consecutive terms is generally called a sequence. For example, 1, 3, 5, 7 and so on. How to get next term? 1, 3, 5, 7 and so on. How to get its fifth term? So first, if we are taking first two terms 1 and 3, then there is a now between two consecutive terms there is some gap is plus 2. Again, if we see 3 and 5, then gap is again 2. So how to get next term? Adding 2 in 7, so we get 9. Okay, so next term to a term is obtained by adding 2 with it. Similarly, next we are taking example 2, 6, 18, 54. How to get next term? This term is obtained by multiplying 3 with first term. For example, 2, 6, 18, 54. So this term is get if we multiply 2 by 3, 6. Next third term 6 into 3, 18. Similarly, you can get next term. Again, next term you can find out. So what is the definition of AP? AP, if various terms of a sequence are formed by adding a fixed number to the previous term or the difference between two consecutive terms is a fixed number, then the sequence is called AP. For example, if we are having sequence this 2, 4, 6, 8, then how to get its next term? Now here gap is again plus 2, plus 2, plus 2. So next term is 10. So here fixed number is 2. So next, if we want to find out next term, then we add 2 in 10. So 10 plus 2, 12. Similarly 14. So you can, it means this is an AP because there is a fixed number 2 we can add in the previous term. Okay, next example is 5, 10, 15. Next example is 5, 10, 15, 20, 25. So here how to get next number? 5, 10, 15, 20, 25. So here first term is 5 and next second term is 10, here 15. So how to check it is an AP or not? AP or not? How to check it is an AP or not? It is an AP? Yes or no? So देखिए इसमें गैप देखिए यहाँ +5 है, यहाँ भी +5 और यहाँ भी +5. So it is an AP. Okay. Now we are taking another example. In this example, figure is given, some pictures are given. Here we have first 1. Suppose this is 1. आप इसको 1 लिख लीजिए. This is 2. This is 3, 4. Okay. तो देखिए 1, 2, 3, 4. Here इन दोनों के बीच में गैप कितना है बच्चों? +1. अब अगेन यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना है? +1. और इन दोनों के बीच में भी गैप कितना है? +1. तो क्या आप समझते हो कि इट इज़ एन AP? गैप इसमें सेम है, फिक्स्ड नंबर 1 हो गया, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी? 5. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ AP. ठीक है. नाउ इफ वी आर, इसको हम जनरल अगर हम ले, इसको A से कंसीडर कर लेते हैं.
तो a यहाँ पर 1 हो गया, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, a प्लस डी। देखिए डिफरेंस कितना है यहाँ पर, सब में 1 1 है, तो ये नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिली, a प्लस डी, 1 प्लस 1 2, फिर देखिए 3, तो 2 प्लस 1 3, तो नेक्स्ट टर्म इज a प्लस डी, डी इज हियर फिक्स्ड नंबर, डी क्या है यहाँ पर फिक्स्ड नंबर, तो ये a प्लस 2d, सिमिलरली a प्लस 3d। अब बता सकते हैं फिफ्थ क्या हो जाएगी, a प्लस 4d। ओके, नेक्स्ट टर्म सिक्स्थ टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, a प्लस 5d। ओके, सबको समझ आ गया बच्चों, ये नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए द जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर मैं जनरल सीक्वेंस ले लेती हूँ, a जैसे ये ली हुई है, इसमें लिखा हुआ है a प्लस डी, a प्लस 2d। अब मैं अगर nth टर्म लिखना चाहती हूँ, आप देख सकते हो बच्चों सब में, देखिए मैंने सेकंड टर्म लिखी तो यहाँ d कितना है, 1d है। अगर मैंने थर्ड टर्म लिखी तो यहाँ पर d कितना, यहाँ पर ये कितना है, 2d। अगर मैं nth टर्म लिखना चाहती हूँ, nth मतलब तो एक कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। तो दिस इज नोन एज nth टर्म, ये आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज nth टर्म। और यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है यहाँ पर, d सब में सेम होगा, मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया था d क्या होगा, सेम गैप जो होता है, तो d जो है सेम गैप है, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, वी से दिस एज कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म क्या हो गई बच्चों, मैंने फर्स्ट टर्म हमारी a हो गई, सेकंड टर्म a प्लस डी। आप देख रहे हो जब मैं सेकंड टर्म की बात कर रही हूँ, सेकंड टर्म, तो यहाँ d कितना है, 1d, और मैं थर्ड टर्म की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर कितना d है, 2d। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट nth टर्म, तो आपका जो यहाँ पर जो ये वाला होगा d के साथ, वो कितना हो जाएगा, n माइनस 1। समझ आ गया, एक एक कम करते जा सकते हो। अगर मान लो सपोज यू वांट टू राइट फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म का क्या मीनिंग हुआ, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मीन्स a प्लस 4d, a प्लस 4d। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो in this slide we learn how to find out its nth term. So nth term is a plus n minus 1 into d. So I think ये सबको समझ आ गया होगा कि nth term हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और nth term को हम किससे डिनोट करते हैं, an, स्मॉल an। कई बार एक कैपिटल an भी ले सकते हैं, अगर कई बार सीक्वेंस जो है a कैपिटल में दिया हुआ है a और d, तो आप इसको स्मॉल कैपिटल से भी लिख सकते हैं। तो nth term इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई थिंक इस आप सबको ये स्लाइड समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, ये आपका फार्मूला हो गया, ये तो आपने कर ही लिया है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये सेम इस सीक्वेंस में है, इस स्लाइड में सेम दिया हुआ है वही, द फिक्स्ड नंबर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म ऑफ ए पी फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। तो देखो बच्चों, जो ये डिफरेंस है वो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है डिफरेंस। टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए आप, सपोज मैंने ले लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 और 4 ले लिया, तो इसमें और एक 6 ले लेते हैं, 4 माइनस 2, तो ये d हो गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट निकाल लीजिए 6 माइनस 4, तो दिस इज़ आल्सो 2, तो यहाँ जो d है वो कॉमन डिफरेंस है, और गैप क्या है, 2 2 का है, तो d इज़ द कॉमन डिफरेंस। और nth टर्म का दिस इज़ द फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी से हम nth टर्म फाइंड आउट करेंगे बच्चों, और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, और आपको ये बहुत अच्छे से करना है। फार्मूला याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये हो गया हमारा। देखिए अब एक एग्जांपल और है, देखिए इसमें एक सीक्वेंस गिवन है, सॉरी देखिए इन दिस एग्जांपल सीक्वेंस इज गिवन। देखिए सीक्वेंस क्या है, 3,7, 3,7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। ओके, सो नाउ हियर व्हाट इज ए। आप देखिए जब भी आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको ये देखना है कि इन दिस सीक्वेंस व्हाट इज ए व्हाट इज डी। तो आपको देखिए ए फर्स्ट टर्म इज ए इज इक्वल टू 3। ओके, सबको समझ आ रहा है। नाउ हाउ टू गेट डी। डी इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। तो हम पहले टू टर्म्स को ले लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को देखिए, ले लीजिए 3 और 7, इनमें गैप कितना है 7 माइनस 3 लिख लीजिए। डी इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो यहाँ कितना हो गया +4। फिर देखिए 7 और 11 कितना गैप आ गया यहाँ पर +4। सही है, समझ आ रहा है सबको। और ये 11 और 15 यहाँ भी +4। तो सब में आप देखिए इस सीक्वेंस में +4 हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 19 से नेक्स्ट टर्म क्या हो गई, +4 करके बताइए 23। तो इट इज़ एन AP। एक तो ये AP है, पहले तो आपको यही चेक करना है द गिवन सीक्वेंस इज एन AP और नॉट। इफ़ इट इज़ AP देन हाउ टू फाइंड आउट इट्स nth टर्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ A व्हाट इज़ D। अगर आपने A और D कैलकुलेट कर लिया तो आप इजीली nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने इतना आपको बता दिया। नाउ व्हाट इज़ AN, आपको AN फाइंड आउट करना है। तो AN कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए AN फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए AN इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला आपके पास है ऑलरेडी। तो व्हाट इज़, आपको अगर मान लीजिए फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, हाउ टू फाइंड आउट फिफ्थ टर्म, n इज इक्वल टू 5, फाइंड इट्स nth, मतलब A5 आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले में आप n को रिप्लेस कर देंगे बाय 5। समझ आ गया सबको। मैंने रिप्लेस कर दिया n को 5 से, a की वैल्यू पुट कर दी 3 प्लस n माइनस 1, n कितना है 5 माइनस 1 इंटू 4, तो 3 प्लस 1 सॉल्व करिए यू विल गेट 4। क्लियर है। तो A फिफ्थ, सॉरी ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 16 आ जाएगा। तो 3 प्लस 16 इज 19, तो दिस इज 3 प्लस 16, so this is 19, so A5 is 19। you can find out seventh term। अगर n is given, whatever n is given you can find out its nth term। so formula is this, very simple, you can easily find out। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों बोर्ड में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। इसमें आप देखिए क्या कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 12, फाइंड an। तो वेरी सिंपल, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। an का फार्मूला लिख दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ व्हाट इज a, दिस इज an, तो a 12 हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा a 12। व्हाट इज a 2, n कितना है बच्चों 12 माइनस 1, व्हाट इज d 2 इज गिवन, तो 2 प्लस 11 इंटू 2। देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, मैंने देखा है बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, 2 प्लस 11 को ऐड कर दिया 13, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, तो 2 प्लस 22 दिस इज इक्वल टू 24। तो देखिए इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको ये पता है व्हाट इज n, व्हाट इज a, व्हाट इज d, तो यू कैन फाइंड एनी टर्म। ओके। और सीक्वेंस जो होते हैं बेटा आपको पता होना चाहिए, 2 टाइप्स की होती है, फाइनाइट सीक्वेंस भी होती है और इनफाइनाइट सीक्वेंस भी होती हैं। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होंगी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। जैसे आपने लास्ट, जैसे n इज इक्वल टू 12, तो जो ये सीक्वेंस बनेगी ये फाइनाइट सीक्वेंस होगी। अगर n आपको मालूम नहीं है, मैं लिख देती हूँ, जैसे आप नेचुरल नंबर्स को ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस इज द इनफाइनाइट सीक्वेंस, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट n क्या फाइनाइट नंबर है, तो वो हमें मालूम है, देयरफॉर इट इज़ इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके बच्चों, सबको समझ आ गया ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए क्या है, अनदर एग्जाम्पल इज ऑल्सो हियर। तो देखिए इन दिस एग्जाम्पल आपको डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंसेस इन द नेक्स्ट टर्म्स। तो हाउ टू गेट डिफरेंसेस, देखिए बच्चों एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, जो सीक्वेंस आपको दी हुई है ये आपको गिवन है, इसमें a कितना है 2, a1 भी लिख सकते हैं इसको। व्हाट इज a2 मीन्स सेकेंड टर्म, दिस इज 6, a3 व्हाट इज दिस इज 10 एंड a4 फोर्थ टर्म क्या है बता सकते हो 14। सबको समझ आ गया बच्चों।
तो अब आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए आप, 2 और 6, 2 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया? 4। नेक्स्ट वी टेक 6 और 10, तो 10। देखिए आपको पहले ये दो, अगर मैं ये वाली दो सीक्वेंस ये लेती हूँ ना नंबर टर्म्स, तो आपको पहले ये वाला थर्ड टर्म लिखना है, फिर सेकंड टर्म। तो 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट वी टेक थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो A4 - A3। देखिए आप सब देख रहे होगे कि इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, जो हमने कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल सेम है। तो जो गिवन सीक्वेंस है हमने ईजिली उनका डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लिया है, और वो क्या है? AP है। जो गिवन टर्म्स है आर इन AP। ठीक है, आप समझ आ गया आपको ये? अगर मैं इससे नेक्स्ट टर्म निकालना चाहूँ तो क्या होगी बता सकते हो? 10 14, तो +4 कर दीजिए, 18 आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट नेक्स्ट अदर टर्म्स। ओके बच्चों, सबको समझ आ गया ये? नेक्स्ट देखिए, अब एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका 1 मार्क में ज़रूर आता है पेपर में, या 2 मार्क्स में भी आ जाता है, कई बार MCQ में भी हो जाता है ये क्वेश्चन, कि आपको जो 3 नंबर्स दिए हुए हैं वो AP में गिवन है, और आपको इसमें देख रहे हो आप एक मिसिंग नंबर है, K इज़ अ मिस, K एक नंबर है यहाँ पर, K-1 एक टर्म है K-1, तो इसमें K हमें मालूम नहीं है। तो यू वांट टू फाइंड आउट K। हाउ टू फाइंड आउट K? आप ये देखिए कि AP गिवन है। AP जब गिवन है तो हम इसमें क्या आप अपना एक लॉजिक लगाइए। आपको कि AP कब होती है कोई भी सीक्वेंस? AP जब होती है जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होती हैं। आप मैं देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चे कर सकते हैं और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप देखिए फर्स्ट टर्म A1 ले लीजिए, A इज इक्वल टू 4, और सेकेंड टर्म A2 हो गया, दिस इज इक्वल टू K-1, और थर्ड टर्म क्या हो गई? 12। थर्ड टर्म क्या है? 12। अब आप इसको A1 भी ले सकते हैं, A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू K-1, और A3 इज इक्वल टू 12। अब आप कॉमन डिफरेंस का इसमें आप मेथड यूज़ करिए। हम पहले फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट 2 का डिफरेंस क्या होगा? A2 - A1। A2 - A1, A2 - A1 का क्या मीनिंग हुआ? K-1 - 4, सो दिस इज इक्वल टू K-5। सबको समझ आ रहा है बच्चों? देखिए इतना इजी हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं A3 - A2, उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा? 12 - K-1। अब बच्चों ये बताओ, आप बच्चे क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन गलत कर देते हैं। इफ़ वी सॉल्व इट यू विल गेट 12 - K + 1, तो दिस इज इक्वल टू 13 - K। दिस इज इक्वल टू 13 - K। समझ आ गया सबको? कई बच्चे यहाँ माइनस ही साइन रहने देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो साइन है बाहर आउटसाइड जो ब्रैकेट के, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं आपके। अब आप देखिए कि आपकी जो ये टर्म है K-5 है, और ये 13 - K, तो दो जो डिफरेंस आ रहा है अकॉर्डिंग टू AP, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स शुड बी सेम। तो वी आर, अब नेक्स्ट बताइए हम क्या करने जाएंगे। अब आपका 5 - K, -K शुड बी इक्वल टू 13 - K। ओके, एक प्लस के और ये -5। ठीक है, अब नाउ इट इज सॉल्व इट। K + K इज इक्वल टू 13 + 5, सो दिस इज इक्वल टू 2K इज इक्वल टू 18। सो व्हाट इज द K इज इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, या 9 आ जाएगा तो इसका मतलब 8 हो जाएगा, 4 8 12। ठीक है, 4 8 12, तो 4 4 का गैप आ गया। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप प्लीज़ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे से। फिर ये क्वेश्चंस बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में भी दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की। अब बच्चों एक लास्ट टॉपिक इसमें जो AP है आपका 10th में जो चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लास्ट टॉपिक है। अगर आपको सीक्वेंस गिवन है,
और n टर्म्स तक सीक्वेंस मान लीजिए a प्लस डी, सपोज आपको सीक्वेंस गिवन है a प्लस डी, a प्लस 2d और इसकी लास्ट टर्म भी आपको गिवन है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ दीज n टर्म्स, जो सीक्वेंस हैं में n टर्म्स हैं उनका हम सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए सीक्वेंस में 2 या 3 नंबर्स हैं तो यू कैन ईजिली ऐड। अगर ज़्यादा नंबर्स हैं तो आप उस सीक्वेंस में अगर मान लीजिए 500 लास्ट जो है 500 मान लीजिए 1 से स्टार्ट किया और लास्ट सीक्वेंस 500 है तो उसका सम कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। बेटा ये फार्मूला आपको याद करना है, डेरिवेशन इज़ नॉट इन योर सिलेबस, कि हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो देखिए सीक्वेंस तो मैंने ये लिख दी थी आपकी a प्लस डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा इनकी सम कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसका एक फार्मूला है Sn ये लास्ट टर्म होती है, इसको हम L से भी डिनोट करते हैं और an से भी डिनोट कर देते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, दैट इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब भी हम सम फाइंड आउट करेंगे तो हमें a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। मान लीजिए हमें n इज इक्वल टू 50 दिया है तो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन ईजिली फाइंड आउट सम। बच्चों ये ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया ये फार्मूला। इसी फार्मूले को एक और दूसरे वे में भी लिख सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे लिख सकते हैं हम। उसको लिखने का तरीका ये है कि Sn उसको लिखने का तरीका है Sn इज इक्वल टू n/2। अगर मान लीजिए आपको a दिया हुआ है और लास्ट टर्म दी हुई है an, तो a प्लस an, ठीक है। इसी को आप थोड़ा सा उसको आप ब्रेक करते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a तो ये हो जाता है, फिर an हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम इस फार्मूले से भी Sn फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ये दोनों ही फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो आपकी एक्सरसाइज है 5.3, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक सम ऑफ n टर्म्स। तो ईजिली यू कैन कैलकुलेट दिस। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब इसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज दिस, फर्स्ट टर्म इज a, an इज 500। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, a इज 100 एंड an इज इक्वल टू 500 एंड फाइंड n। और इसका अगर हम सम भी फाइंड आउट करना चाहें, अगर n मालूम होगा तो सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब तक n नहीं फाइंड आउट होगा तो सम नहीं पता, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए an इज गिवन, व्हाट इज गिवन, an इज गिवन। तो an का आपने फार्मूला लिख दिया डायरेक्ट, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ व्हाट इज गिवन, an इज 500 इज इक्वल टू a कितना है 100, n माइनस 1 एज इट इज। और व्हाट इज d गिवन है, d गिवन है इसमें। d देखो d कितना दिया, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है बच्चों। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस इज 5, वी टेक हियर 5। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 100 है जो ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो 500 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 400। इज इट क्लियर। अब इसको हम 5 इंटू n माइनस 1 इज। अब बच्चे देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है। देखिए इसको थोड़ा सा और इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास दिस इज इक्वल टू 400। ओके, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, वो भी ठीक है लेकिन वो लेंथी मेथड हो जाता है। सिंपलेस्ट वे कि जो 5 है मल्टीप्लाई में, उसको आप डिवाइड में ले आइए, n माइनस 1 इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 5। सो दिस इज 80, दिस इज 80। तो ये आपका 80 आ जाएगा यहाँ पर। जब ये 80 आ गया तो n माइनस 1 आप यहाँ लिख देती हूँ मैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। तो व्हाट इज n इज इक्वल टू 81। ठीक है, समझ आ गया, n फाइंड आउट हो गया। आप सम भी देखिए 81 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने फार्मूला ऑलरेडी आपको बता ही दिया है हाउ टू फाइंड आउट। इसमें a मालूम है और an मालूम है और n मालूम है। तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों,
इसमें आप इजीली फाइंड आउट कर, एक मिनट चलिए इधर ही मैं हाँ, इसमें आप देखिए आपका n कितना हो गया 81। अगर मैं सम फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने फार्मूला बताया था, इस वाले फार्मूले को यूज़ करिए, बहुत इजी है। n 81 हो गया, डिवाइड बाई 2। व्हाट इज a इज 100 प्लस an 500। सॉल्व कर लीजिए इसको, 600 हो गया, तो 81 डिवाइड बाई 2 इंटू 600, तो ये कैंसिल हो गया, 300 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यू विल गेट सम। ठीक है बच्चों, सम समझ आ गया। मल्टीप्लाई तो खुद भी कर सकते हो आप, 10th क्लास स्टूडेंट हो। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, सो डैट आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। देखिए बच्चे, जब भी कोई क्वेश्चन दिया होता है आपको ये देखना है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। अगर आपको ये नहीं मालूम कि क्या गिवन और क्या फाइंड आउट करना है तो वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप, मैं तो यही कहूँगी कि जब भी हम ज्योमेट्री करते हैं तो पहले यही देखते हैं क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। सिमिलरली अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको ये देखना है व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ गिवन। आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो गिवन एपी तो आपको मालूम ही है क्या गिवन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट्स फर्स्ट टर्म। आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर क्या है सीक्वेंस का 12, तो a इज इक्वल टू 12। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? 20 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 8। अब बताइए मुझे n, सम ऑफ 30 टर्म्स, तो व्हाट इज n हियर? n इज 30, n इज इक्वल टू 30। बच्चों समझ आ गया आपको, n इज 30। तो सिंपली यू कैन फाइंड आउट इट्स सम। n को 30 से रिप्लेस कर दीजिए, इजीली यू कैन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम्स जब भी आप, मैंने एक बात बताई, बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, वो रॉन्ग हो जाता है। आप पहले 29 इंटू 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद 24 ऐड करेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक रहेगी। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, चाहे वो 10th क्लास स्टूडेंट हो चाहे वो 6th क्लास हो। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन उनकी वीक होती है, वहीं वो मैथमेटिक्स में गड़बड़ करते हैं। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, और बीइंग ए 10th क्लास स्टूडेंट आपको कैलकुलेशन आना ही चाहिए। और हाउ टू सॉल्व सिंप्लीफिकेशन, जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होती है, मैं ये चाहे आपको टॉपिक ना समझ आए लेकिन कैलकुलेशन अच्छी है तो आप मैथमेटिक्स अच्छे से कर सकते हैं, मैं तो यही कहूँगी। बहुत बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब यही देखते हैं कि उनको, मैंने ये देखा है 10th में भी उनको कैलकुलेशन नहीं आती। एक नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी, उसमें मैं वही बताऊंगी कि हाउ टू सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन कैसे करनी है। जब तक बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आएगी मैथ नहीं आएगा। बच्चे ये क्वेश्चन करते करते यहाँ पर गड़बड़ कर दी, आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके 2.5 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। तो देखिए आपने इतना सब किया और लेकिन कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई तो आप नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए क्या करेंगे हम। तो इसके लिए अब लास्ट देख लीजिए, अब लास्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो दिस इज़ सम, तो ये आपका सम आ गया है। बच्चों आई होप कि आपको जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।